नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के सिद्धार्थ आर्ट्स एंड डिग्री कॉलेज बीदर में A1 डे वर्कशॉप ऑन डायरेक्ट टैक्स ऑफ इनकम टैक्स कार्यक्रम किया गया आयोजित। SC/ST बच्चों के माता पिता ने आज अपनी मांगों को लेकर बीदर में किया विरोध प्रदर्शन। प्रतिष्ठित स्कूलों में SC/ST छात्रों का एडमिशन लेने की थी मांग। हाल ही में कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी ईश्वर खरे के घर के सामने आंगनवाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक में दूषित पानी पीने से 2 लोगों की मौत, सैकड़ों बीमार, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने दी जानकारी। अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव की तैयारी, मोदी सरकार कर सकती है रिव्यू, छुट्टी से लेकर भर्ती तक बदल सकते हैं ये नियम। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बीच पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग, गृह मंत्री शाह और NS से डोभाल से की बात। अब समाचार विस्तार से। बीदर के सिद्धार्थ आर्ट्स एंड डिग्री कॉलेज बीदर, बीवी भूमरेड्डी डिग्री कॉलेज बीदर और गवर्नमेंट वुमेन्स कॉलेज के संयुक्त रूप से आज गुरुवार 13 जून को A1 डे वर्कशॉप ऑन डायरेक्ट टैक्स ऑफ इनकम टैक्स कार्यक्रम आयोजित किया। इस कार्यक्रम में अतिथियों सीनियर अधिवक्ता बीदर महेश पाटिल, डॉक्टर संक्षिप्ति शेटकार, गोपाल पडिगर और HOD जगन्नाथ पडिगर के अलावा अन्य उपस्थित रहे। दीप जलाकर इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी अतिथियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर भारी संख्या में कॉलेज के छात्र और छात्राएं उपस्थित रही। इस अवसर पर अतिथियों और अन्य ने संबोधित किया। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಡಿಗೇರ್, ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ ಕಾಲೇಜ್ ಬೀದರ್. ಇಂದು 13/6/2023 24ರಂದು ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಕ್ಶಾಪನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ದಲ್ಲಿ ಬೀದರಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಕಾಲೇಜ್ ಆದಂಥ BUB ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೇಜ್ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯವೂ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗದಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ದಿನದ ವರ್ಕ್ಶಾಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ BCom ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಜ್ಞಾನಾರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ತನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಹೆಸರನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ನೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಾದಂಥ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮಹೇಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬೀದರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು ನೌಬಾದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಶೆಟ್ಕರ್ ಸಹ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದರು. ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ಕಾಲೇಜಿನ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಾಂದಳೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮ್ಶಾ ಅವರು ಸಹ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಈ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಗೋಪಾಲ್ ಬಡಿಗೇರ್ ಆಗಲಿ, ಉಪ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದಂಥ ಜಗದೇವಪ್ಪ ಚೆಕ್ಕಿ ಆಗಲಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಮಿತ್ರರು ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಒಂದು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರದು ತನ ಮನ ಧನದಿಂದ ಸಹಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಭೀಮ್, ನಮೋ ಬುದ್ಧಾಯ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಬಡಿಗೇರ್, ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು वाणिज्य विभाग बीदर। बीदर के प्रतिष्ठित स्कूलों में SC/ST छात्रों का स्कूलों में एडमिशन न होने के विरोध में प्रदर्शन किया और साथ ही बीदर के द मनिका पब्लिक स्कूल एंड मीडिया रेसिडेंशियल स्कूल में SC/ST बच्चों का एडमिशन करवा लेने की मांग की गई और इन स्कूलों में SC/ST बच्चों के एडमिशन लेने से इनकार पर विरोध जताया। इस अवसर पर लक्ष्मीपुत्र मानवी, सुधाकर राजगिरे, गौतम चौहान, श्रीनिवास कटिमनी, बसवराज मोरे और बाबा नारायणपुर के अलावा अन्य उपस्थित थे। इस अवसर पर छात्रों के माता पिता और अन्य ने केपी न्यूज से बात की। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ SC/ST ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸ್ಟಿಜಿಯಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಮಾಣಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಇರೋದು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು
ಈ ಸ್ಕೀಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ನೆಪ ಹೇಳಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು SC/ST ಮಕ್ಕಳು ಒಟ್ಟು SC 25 ST 18 ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ತೊಗೊಳೋಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಲಕರಿಗೆ ಸಂಶಯ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಏನಂದರೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಶಾಮೀಲಾಗಿ ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಿ ಒಂದು ಪಾಲಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅಹೋರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗೋವರೆಗೆ ಅಹೋರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಧರಣಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ನಡೆದಿದೆ. ಇದು ನಿರಂತರ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಲಕರು ಒಂದು ತಾಯಿದೇರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಈ ರೋಡಿಗೆ ಬಂದು ಕುಂತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ, ಇದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇದು. ಆದರೆ ಅವರೇನು ಇದಕ್ಕೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕಲಿಸಿದಾರೆ, ಅಂಥ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂಥ ಶಾಲೆ ಕಲಿಬೇಕೆಂಬುದು ನಮ್ಮ ತಾಯಿದೇರದೊಂದು ಆಸೆ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಹಗಲ ರಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕೋಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಸಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸಾಗಿದ್ದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತೇನು ಹಕ್ಕು ಸಿಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನಿಂದ ಹಳ್ಳಿನಿಂದ ಯಾವ ಸಾಹುಕಾರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಬಡವ್ರ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತೇನು ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಇವರು ಬಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರಾಗಿ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ವಸ್ತು ಸಚಿವರು ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡೆ ಸಾಹೇಬ್ರು ಗಮನ ವಹಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೇಳ್ಕೊತೇವೆ. ಇದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕಂತ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಓದಿಸ್ಬೇಕು, ಬರೆಸ್ಬೇಕು, ಒಂದು ನೌಕರಿ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕೆಂಬ ಆಶೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಮಕ್ಕಳ ಕಡೆಯಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಾಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಂಘಟನೆದವರಿಗೂ. ಅವರು ಕೂಡ ನಾನು ಈ ವೇದಿಕೆ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತು ವಿರಾಮ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಧಾಕರ್ ರಾಜಗಿರ. ನನ್ನ ಮಗನೂ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದೀನಿ. मैं कालिदास नामदेवराव आड़े, रहने वाला मुर्की, तालुका औराद, जिला बीदर. मैं पेरेंट्स हूँ. मेरी लड़की यहाँ पे आई की हुई है. मेरे को कहना ये चाहता हूँ कि सभी मेरे बांधव मित्र, हमारे सभी स्टूडेंट, मैं इस जिला अधिकारी और हमारे बीदर ज़िले के उस्तेवारी सचिव को और हमारे सोशल वेलफेयर ऑफिस के DD मैडम को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज हमारे 11 साल 12 साल के बच्चे इस स्थिति में अगर हम हमारे रोड पे उतर कर ये सब करना ठीक नहीं है. क्योंकि आगे भविष्य में उनको आगे अच्छा एजुकेशन लेकर उनका ख्वाब है कि हम अच्छे स्कूल पढ़े, आगे बढ़े, कुछ हम DC बने, ऐसा उनका ख्वाब है. तो मैं DC साहब को मैं मनवी करता हूँ कि ऐसे इस छोटे छोटे बच्चों को ऐसा अन्याय करना ठीक नहीं है. कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी एवं बीदर इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडे के घर के सामने सैकड़ों की संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया. इन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने कहा कि कर्नाटक सरकार के आदेश के अनुसार LKG को UKG प्राइमरी स्कूल में विलय नहीं किया जाना चाहिए. इस अवसर पर आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ की जिला अध्यक्ष सुशीलम्मा, अखिल भारतीय महिला संघ की उपाध्यक्ष रेशमा हंसराज उपस्थित रहे. इस अवसर पर रेशमा हंसराजू ने अपनी बात रखी और मांग की कि सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को तुरंत वापस लिया जाए. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर आदेश वापस नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में उग्र संघर्ष करेंगे. भालकी से KP न्यूज के संवाददाता सैमुल की रिपोर्ट. ನಾನು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಜನವಾದಿ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳಿದೆ. ಏನು LKG UKG ನಮಗೆ ಕೊಡ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಡಿದು ತನ್ನ ವಯಸ್ಸನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂತ ಹೋದವರಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಾದರೂ ಇನ್ನೂ ದುಡಿತೇವೆಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಬಲೀಕರಣದ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನು ಕೈ ಬಿಡಬೇಕು. ಇವ್ರ ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಆ ಡಿಮಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ತೀವ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಂತ ನಾನು ಈ ಬೈಟ್ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ರೇಷ್ಮಾ ಹಂಸರಾಜ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ನಾನು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘಟನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಶೀಲಾ ಹತ್ತಿ, ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಭಾಲ್ಕಿ ತಾಲೂಕಿನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ. ಇಂದು ನಾವು ಈ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಮೊನ್ನೆ 3ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಚಲೋ ಮಾಡಿ 7 ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಸಹಾಯಕರು LKG UKG ರದ್ದು ಮಾಡಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ 3ನೇ ತಾರೀಕಿನ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ ತನಕ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು.
ನಮ್ಮ UKD ಆಫೀಸ್ದಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒಪ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆಲ್ಲ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಅಳವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸುಟ್ಟಿದಂಗೆ ಕುಟ್ರ ಕೈದಾಗ ಬೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆವು, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿ ಒಂದೇ ಸಲ ನಿನ್ನೇನು ಮಾಡ್ರೆ 12 ಗಂಟೆಗೆ ನಮಗೇನು ಮಾಡ್ರೆ LKG UKG ಪ್ರೈಮರಿ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ ಕಡೆದು ನಿನ್ನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ನಾವು ಗುಲ್ಬರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದರು. ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪದಾಧಿಕಾರಿ, ರಾಜ್ಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕರೆಸಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅಜಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಕೊಡ। गर्मियों के मौसम के दौरान आम लोगों की तरह तरह की बीमारियों से जूझना पड़ रहा है। सबसे बड़ी समस्या है पेयजल। देश की राजधानी दिल्ली और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पानी की विकराल समस्या मुंह सामने खड़ी है। इस बीच कर्नाटक से एक खबर सामने आई है। खबर है कि कर्नाटक के तुमकुरू जिले के चिन्नेनहल्ली गांव में दूषित पानी पाने से 2 लोगों की मौत हो गई। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने इस बात की जानकारी दी है। मृतकों के नाम चिक्दासप्पा और पेद्दन्ना बताए गए हैं। अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों की मौत हो गई। बताया गया है कि 10 जून को चिन्नेनहल्ली गांव में एक मेले का आयोजन कराया गया था। इस दौरान वहां पानी की टंकी से पेयजल की व्यवस्था की गई थी। बताया गया है कि इस पानी को पीने से सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए थे। बता दें कि गृह मंत्री जी परमेश्वर तुमकुरू जिले के प्रभारी हैं। उन्होंने उस अस्पताल का दौरा किया जहां दूषित पानी पीने से बीमार हुए लोगों का इलाज चल रहा है। उन्होंने कहा चिन्नेनहल्ली गांव में एक मेले का आयोजन किया गया था। वहां दूषित पानी पीने से सैकड़ों लोग बीमार पड़ गए। सभी को उल्टी और दस्त की शिकायत है। कुछ लोगों का इलाज मधुगिरी, कोरटगेरे और तुमकुरू के निजी अस्पतालों में चल रहा है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS प्रमुख राज ठाकरे ने गुरुवार को पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि वे आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में 288 सीट में से 225-250 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहे। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने यह जानकारी दी। एक बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मन से नेता बाला नंदगांवकर ने कहा, पार्टी पदाधिकारी राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा करेंगे और चुनावी तैयारियों के बारे में ठाकरे को एक रिपोर्ट देंगे। मन से ने लोकसभा चुनाव के दौरान भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए को समर्थन देने की घोषणा की थी। राज ठाकरे ने एनडीए के लिए प्रचार भी किया, हालांकि उनकी पार्टी कहीं भी मैदान में नहीं थी। नंदगांवकर ने कहा, राज ठाकरे ने पार्टी कार्यकर्ताओं से विधानसभा चुनाव में 225 से 250 सीट पर लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा है। यह पूछे जाने पर कि क्या मन से भाजपा, शिवसेना, राकंपा गठबंधन के साथ गठबंधन करेगी या अपने दम पर लड़ेगी, नंदगांवकर ने कहा, हम अभी इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम किसके साथ बातचीत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा, हमें अब तक अपने दम पर चुनाव लड़ा है। हम देखेंगे कि भविष्य में क्या होता है, लेकिन अगर हमें चुनाव की तैयारी करनी है तो पार्टी का विस्तार करना होगा। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Bidar University Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात
और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ये देखते समाचार। मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे ने अपनी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल को स्थगित करने की घोषणा की है। बता दें कि मनोज जरांगे पिछले 6 दिनों से हड़ताल पर थे। वे लगातार मराठा आरक्षण को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। जरांगे चाहते हैं कि मराठा समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की तरह आरक्षण दिया जाए। मनोज जरांगे ने महाराष्ट्र के जालना जिले में अपने पैतृक गांव अंतरवाली सराटी में शनिवार को विरोध प्रदर्शन शुरू किया और चेतावनी दी थी कि अगर सरकार इस मुद्दे का तुरंत समाधान नहीं करती है तो वह नसों के माध्यम से शरीर में तरल पदार्थ लेना भी बंद कर देंगे। उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, जिस वजह से छत्रपति संभाजी नगर से नवनिर्वाचित शिवसेना सांसद संदीपन भुमरे ने मंगलवार को अंतरवाली सराठी का दौरा किया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद चंद्र पवार एनसीपी एसपी प्रमुख शरद पवार ने बृहस्पतिवार को कहा कि उनका प्रयास महाराष्ट्र की कमान संभालना है और इसके लिए उनकी पार्टी को इस साल के अंत में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करनी होगी। हाल ही में संपन्न आम चुनाव में शरद पवार के नेतृत्व वाली राकंपा एसपी ने महाराष्ट्र में लोकसभा की 10 सीट पर चुनाव लड़ा था और 8 पर जीत हासिल करके प्रभावशाली प्रदर्शन किया। पवार की पुत्री और राकंपा एसपी उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने अपने चचेरे भाई अजित पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार को हराकर बारामती सीट पर लगातार चौथी बार जीत हासिल की। उन्होंने कहा, हमारी पार्टी के पदाधिकारी मुझसे कहते थे कि बारामती के लोग चुप है और वह खुलकर कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि चिंता न करें, क्योंकि भले ही यहाँ की जनता कुछ नहीं कर रही हो, लेकिन वे बटन ईवीएम में सही दबाएंगे। और अंत में वही हुआ। जैसे ही ईवीएम खुली, जादू दिखा, क्योंकि आप लोगों ने बड़ी संख्या में मतदान किया। भारतीय सेना में अब जवानों की भर्ती अग्निपथ स्कीम के जरिए करती है, लेकिन लोकसभा चुनाव में विपक्ष के अग्निवीर योजना के मुद्दे को जोर शोरों के साथ जनता के बीच उठाया। इतना ही नहीं, जब बीजेपी ने सरकार बनी तो उनके सहयोगी दल ने भी अग्निपथ स्कीम में बदलाव की मांग की है। वहीं जिस दिन इस स्कीम को लागू किया गया था, तब से यह बात भी रक्षा मंत्रालय की तरफ से कही गई थी कि समय समय पर इसको रिव्यू किया जाएगा। अगर कोई परिवर्तन करना हो तो उसे भी किया जाएगा। अग्निपथ स्कीम को लागू हुए 1.5 साल का वक्त हो चुका है और इन 1.5 साल में इस स्कीम को रिव्यू किया जा रहा है। सूत्रों की माने डीएमए यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने तीनों सेना से इस पर रिपोर्ट मांगी है। सूत्रों की माने तो 4 साल के कार्यकाल को बढ़ाने, ज्यादा भर्ती और 25% रिटेंशन की सीमा को बढ़ाने की बात की जा रही है, लेकिन यह कितनी होगी इस पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके अलावा ट्रेनिंग और या ड्यूटी पर किसी अग्निवीर को मौत या घायल होने की सूरत में परिवार को आर्थिक सहायता दिए जाने को लेकर भी मंथन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 4 दिनों में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई 4 मुठभेड़ों के बाद जम्मू कश्मीर में स्थिति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाले से बात की। प्रधानमंत्री को केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा संबंधी स्थिति और सशस्त्र बलों द्वारा किए जा रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों की पूरी जानकारी दी गई। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अधिकारियों से सशस्त्र बलों की आतंकवाद विरोधी क्षमताओं का पूरा उपयोग करने को कहा है। प्रधानमंत्री ने अमित शाह से सुरक्षा बलों की तैनाती और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर चर्चा की। अब फिलहाल लेते एक और छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश
देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली एंड एफिलेटेड टू बीदर यूनिवर्सिटी बीदर। Admission are open for the academic year 2023-24। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र के नागपुर में एक कंपनी में विस्फोट होने की खबर है। विस्फोट में 5 लोगों के मारे जाने की सूचना है। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है। जानकारी के अनुसार नागपुर के धमना इलाके में चामुंडा बारूद फैक्ट्री में यह हादसा हुआ है। चामुंडा बारूद फैक्ट्री एक निजी कंपनी है। मौके पर तमाम आला अधिकारी पहुंच गए। राहत और बचाव का काम जारी है। नागपुर के पुलिस आयुक्त ने बताया कि सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल ने पहुंचकर राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी से नई सांसद बनी कंगना रनौत का मानना है कि फिल्मों में काम करना राजनीति से कहीं ज्यादा आसान है। द हिमाचली पॉडकास्ट के साथ इंटरव्यू में अभिनेत्री से नेत्री बनी कंगना ने खुलासा किया कि भले ही वह इस साल मार्च में बीजेपी में शामिल हुई, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में उन्हें राजनीति में शामिल होने के लिए कई ऑफर्स मिली। राजनीति के लिए बीजेपी का ही चुनाव क्यों वाले सवाल पर कंगना ने कहा कि उन्हें लगा कि ऐसा करने के लिए यही सही समय है। भले ही उन्हें पिछले कुछ वर्षों में कई प्रस्ताव मिले। उनके परदादा सरजू सिंह रानौत भी विधायक थे, इसीलिए ये ऑफर कभी भी मेरे परिवार से बहुत दूर नहीं थे। मेरी पहली फिल्म गैंगस्टर के तुरंत बाद मुझे पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का ऑफर दिया गया था। पिछले कुछ सालों में मेरे पिता और बहन को भी इस तरह के ऑफर मिले। ये पहली बार नहीं है जो मुझसे राजनीति में शामिल होने के लिए संपर्क किया गया। वैसे अगर मुझे खुद भी इसमें दिलचस्पी नहीं होती तो वास्तव में मुझे इतनी परेशानियों से नहीं गुजरना पड़ता। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के सिद्धार्थ आर्ट्स एंड डिग्री कॉलेज बीदर में A1 डे वर्कशॉप ऑन डायरेक्ट टैक्स ऑफ इनकम टैक्स कार्यक्रम किया गया आयोजित। SC/ST बच्चों के माता पिता ने आज अपनी मांगों को लेकर बीदर में किया विरोध प्रदर्शन। प्रतिष्ठित स्कूलों में SC/ST छात्रों का एडमिशन लेने की थी मांग। हाल ही में कर्नाटक के कैबिनेट मिनिस्टर फॉर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी ईश्वर खड़े के घर के सामने आंगनबाड़ी महिला कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। कर्नाटक में दूषित पानी पीने से 2 लोगों की मौत, सैकड़ों बीमार, गृह मंत्री जी परमेश्वर ने दी जानकारी। अग्निवीर योजना में बड़े बदलाव की तैयारी, मोदी सरकार कर सकती है रिव्यू, छुट्टी से लेकर भर्ती तक बदल सकते हैं ये नियम। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमलों के बीच पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग, गृह मंत्री शाह और NS से डोभाल से की बात। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।